Assalamu alaikum. This is Fasi Khan and welcome to the new episode of Experiences with White Flock. आज हमारे साथ एक यूनिक गेस्ट हैं जिन्हें मैं कहूँगा they have their own vision, they have their own mission into doing something different. I would like to introduce Mr. Fayaz Saab and a very close friend of mine as well. तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि we'll have this kind of a conversation और आज हमें थोड़ा बहुत मौका मिला है इस conversation करने का. तो हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन रखा तो दे विल टेल अ लिटिल बिट अबाउट देमसेल्व्स एंड व्हाट दे आर बिल्डिंग हियर. सो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू. तो फैज साहब आप मेरे को बताइए क्या मतलब चल रहा है आजकल, हाउ इज इट गोइंग, एनीथिंग इंटरेस्टिंग आप अभी जिस पे काम कर रहे हैं? हाँ, हम इस साल वी आर ट्राइंग टू स्केल थिंग्स अप, वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट आवर एक्सपीरियंस. Thankfully, we are seeing that more and more people are interested. So recently, in the last week, spontaneously, we have received 3 international groups. So we are sort of feeling like this season is going to be very interesting for us. So we are looking forward to that. Zarur. So we are also seeing like a very good spike in terms of जो interest लोगों में आ रहा है, international and domestic both. So let's go back a little bit. Let's go back towards the history, the beginning of SAG. जी. तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि how did it start and what was the reason कि आपने ये एक पूरा एक ecosystem type एक यहाँ पे बनाया? जी, खैर दास्तानें तो हमारी लंबी होती हैं मगर थोड़ा ब्रीफली मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं. आई कम फ्रॉम अ विलेज नियर बाय, वाहिदपुरा ही गांधरबल में है, 3-4 किलोमीटर यहाँ से दूर है. सो आई ग्रू अप इन अ फार्मिंग बैकग्राउंड और फिर स्कूलिंग और एजुकेशन की जर्नी के हवाले से आई हैड टू मूव आउटसाइड ऑफ कश्मीर. तो आई लिव्ड आउटसाइड ऑफ कश्मीर फॉर अबाउट 15-17 years. तो आई हैपन टू वर्क इन डिफरेंट कल्चर्स, स्टडी एंड ऑल्सो ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. So when you go outside of your own context, you start realizing things about your own context. आप थोड़ा सा अपना you start realizing who you are, where you are from, and अपना culture समझ में आता है, and the distinctiveness. and कश्मीर को हम बचपन से ही सुनते आए हैं is heaven on earth, मगर हम जब यहाँ रहते थे तो हमको वो एहसास नहीं था. तो when you go outside and when you see other places and how people are making things work, so then you realize why we are the way we are and why people feel like we are blessed or what is special about us. तो वो जर्नी मेरी रही. तो then I also was on that journey. I was always sort of figuring out, जैसे बचपन में हम पल बढ़ रहे थे, although we were seeing this discourse of and hearing this discourse of development, progress, education, मगर unfortunately people were not treated right. People were struggling or suffering, and that unfortunately is the case with majority of the world population. जो मेरे छोटे से तजुर्बे में मैंने देखा. तो I was always looking for ways and means to contribute. कि मुझे लगता था कि मेरा क्या रोल है, what can I do. ये बचपन से ही कुछ ऐसी इस तरह की ज़हनियत थी मेरी. तो फिर after I sort of survived, I found a job, I worked through different jobs and I climbed the ladder of survival. मैं दिल्ली में I worked for 8-9 different organizations based in Delhi, traveling around. और तो I finally realized certain things about myself, my capacity and the place I am from. तो फिर in 2009 I turned back and I came back. and जितना भी मेरा अपना तजुर्बा रहा था, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से या बाकी काम के हवाले से, आई consolidated that. and my personal aim was to work with younger people in Kashmir. ये तो I started a non-profit actually, मूल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर. तो उसमें प्राइमरी एम जो हमारा था टू वर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी बट बाय बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ यंग पीपल. तो अभी where is that? हाँ, वो चल रहा है, मगर वो 2-3 साल वो काम करने के बाद कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में काफ़ी सारे हमने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एंड अदर एनजीओज से वी कोलैबोरेटेड एंड वी डिड दीज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च. यूजिंग दैट मेथोडोलॉजी वी वर्कड विद यंग पीपल. मगर उसमें एक चीज़ जो लिमिटेशन वी रियलाइज्ड वाज कि
young people have these aspirations and dreams and they want to contribute to their communities, but unfortunately when it comes to decision making, livelihood takes precedence, and the security of livelihood sort of makes them sacrifice all their dreams. This is Exactly. true in most Exactly. cases, unfortunately. तो वहां से मुझे समझ में आया probably the non-profit model has certain limitations. You can help build capacity, but you cannot really solve the question of livelihood. So then I realized probably entrepreneurship is a better way. And because I was uh, I, I had this social work bent of mind, so I wanted to contribute to my community. So I sort of tried to integrate my social goals, my financial goals, and my personal aspirations as Into well. one And thing. yeah, and that's why we ended up starting Sag Eco Village. So as an ecological entrepreneurial venture, and which helps you uh, in build a business that also improves the quality of life for all stakeholders, whether they are customers, whether they are owners, whether they are your team, whether they are the ecological resources, birds, animals, soil, trees, plants. तो इस तरह का ये हमने Exactly. बनाया था. So I think बहुत सी चीज़ों पे आपने टच किया, and I can personally relate to a lot of things. So having studied outside Kashmir and then worked for some time there, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि एक relatability का एक question आता है. Always we are there. I was in Dehradun. I was in south side of India, and then you come back, then you make that decision कि मेरे को घर जाना है वहाँ पे, maybe we'll try to do something. So I completely relate to that. So then आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है विद सग इको विलेज. यू सेड कि आपने एनजीओ का एक एंगल ट्राई किया और नहीं हुआ. नाउ यू आर इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप. एंड जब आपने ये डिसीजन लिए, जब आपने स्टार्ट किया, व्हेन यू केम बैक, सो सबसे पहले आप बताइए कि हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ योर पेरेंट्स, हाउ वाज इट कि आपको बाकी फ्रेंड्स, फैमिली, हाउ डिड दे रिएक्ट टू दैट? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 2009 और उससे पहले की बात हो रही है ये, राइट? तब आई डोंट थिंक एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी हमने वो समझा था उस टाइम पे. सो हाउ डिड दे रिएक्ट टू दैट? वेल, कुछ हद तक तो मेरे पेरेंट्स अभी भी अम्यूज्ड है कि मैं कर क्या रहा हूँ. So, मगर थैंकफुली अब थोड़ा सा उनको समझ में आ रहा है कि ट्रैक समझ में आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं. बिकॉज there's been, हम यहाँ 2012 में आए थे. We took charge of this piece of land and it was a barren piece of land. यहाँ पत्थर थे और कांटे थे. The only good thing at that point was the view. You could see Srinagar. हाँ, पर उसके बाद हमने we started removing the thorns and breaking the rocks and all the infrastructure that you see here, जो भी दीवारें हैं, जो भी बनी है huts, they have been built by all the rocks that were broken here. तो इस तरह का जब काम आप करते हैं तो obviously there's no example to look at, there's no example to cite also. जब आपके पेरेंट्स पूछते हैं या कोई और पूछते हैं, तो a lot of people were surprised. Many of them of course felt like it's a mistake, big mistake, because initially there was interest, other people wanted to also join the effort, but unfortunately most of them had to make other decisions and they went on other journeys. तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने बोला फार्मिंग का था, और फिर मेरी जो जर्नी रही, जिस तरह का मैंने काम किया, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल हियर एंड देयर. तो काफी जगह मैंने देखा. I would do my work, but I would also take some days off because मेरा जो काम था, काफी सारा काम मेरा इस तरह का था. I had to travel to other places and organize conferences, meetings, इस तरह की चीजें. तो मैं जब वहाँ काम खत्म करता था, तो conferences वगैरह तो 5 stars में होती थी, तो I would take a few days off and I would go and live in the locality, जिस शहर में भी, जिस जगह में भी हम होते थे. So I would see what people were doing, and उनके through I also bumped into many alternatives that people were trying. चाहे वो एजुकेशन के ऊपर अलग से कुछ काम कर रहे थे, चाहे इकोनॉमी के ऊपर, चाहे और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, इस तरह के लोग छोटे छोटे इनिशिएटिव्स चल रहे थे. तो वो चीजें अक्यूमुलेट होती गई, वो नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और फिर जब मैंने ये शुरू किया, सो इसमें बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, आई वांटेड टू इंटीग्रेट माय सोशल गोल्स. आई डिड नॉट वांट टू गिव अप माय सोशल वर्क. तो and we were looking at we wanted to create sort of a holistic solution to the so many problems that we are faced with. But मेरे
तजुर्बे में they are all symptoms of a core problem, which is our alienation from our own selves, which is our disconnection from our nature, and by extension that's a all very of nature. deep like kind of a philosophy or thought. हाँ, So I want to simplify that कि what are the core problems you see कि SUG Eco Village या what you are doing is trying to solve? क्या ऐसी core problems है? बिल्कुल. तो ये जो मैं बता रहा था आपको, ये जो we wanted to create a holistic sort of a solution that helps us address the core problem. So as I said, core problem in my understanding was the alienation of people from their own nature and from their surrounding nature. Because जब आप अपने आप से थोड़ा, when you forget who you are, then you don't recognize the resources around you. You know, आपको problems ज़्यादा दिखती हैं, आपको solutions कम दिखते हैं. मगर तो the problems that we are trying to solve, the overt problems that we are trying to solve with SUG is one is, for example, जो हमारे food में प्रॉब्लम्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो पैकेज्ड फूड में प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की चीजें जो प्रिजर्वेटिव्स हम डाल रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है. तो वी आर डूइंग नेचुरल फार्मिंग है, तो हम सारी फार्मिंग नेचुरल करते हैं, अपनी कंपोस्टिंग करते हैं. तो इट टुक अस अ व्हाइल टू ग्रो ट्रीज एंड फ्रूट्स हियर एंड वेजिटेबल्स, मगर वी स्टक टू दिस आइडिया. तो वो तो एक तरह से, तो वी कैन गाइड पीपल ऑन दैट एज वेल कि नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू या प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ योर फूड. तो दूसरा, फॉर एग्जांपल, हम जो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, दैट इज बिल्ट बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज. जैसे मैं पहले कह रहा था, पत्थर या लकड़ी या और चीजें, और जो उनका डिजाइन है, जो उनका आर्किटेक्चर है, स्टोन वॉल्स हैं एंड देन दे आर मड प्लास्टर्ड. तो जो हमारा ट्रेडिशनल, कई इलाकों में हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर रहा है ऐसा, तो वो हम यूज कर रहे हैं. तो वी आर reviving that kind हाँ, we are sort of using the cultural wisdom and bringing it back and connecting it, integrating it with today's lifestyle एक तरह से. तो वो चीजें हैं कि local resource. दूसरा, फिर जितना भी यहाँ काम हो रहा है, जितना भी काम यहाँ हुआ है, more almost 100% has been done by locals. जितना भी, चाहे वो कारपेंट्री है, चाहे वो मेसनरी है, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे वो और तरह का स्किल्ड और लेस स्किल्ड सॉर्ट ऑफ काम है, तो होल ऑफ आवर टीम इज लोकल. तो इस तरह का, तो एक वो लोकलाइज्ड जो डेवलपमेंट है या लोकलाइज्ड इसका एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है, वो हम फॉलो करते हैं. उसके अलावा जो हमारी फार्म की प्रोड्यूस है, वी आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग and using cultural traditional recipes to preserve food. हम pickling करते हैं, हम jams बनाते हैं, हम dried stuff बनाते हैं, मगर वो सारा हम again traditional recipes use करते हैं, no preservatives. तो वो चीज में, उसके साथ साथ हम handcrafts, जैसे grass mats आप देख रहे हैं, wicker chairs आप देख रहे हैं, या grass baskets हम बनाते हैं. तो जो handcrafts इलाके में हैं, जो the people already have those skills, तो मगर उनका मार्केट नहीं है, because they are not being used anymore. तो we are using them here and we are also trying to promote them and selling them. तो वो भी एक so we are sort of promoting local artisans, local crafts, उस तरह से. तो उसके अलावा जो असल में जो मैं डिस्कनेक्शन की बात कर रहा था, जो वो प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, we give people an immersive experience. जो ट्रैवलर्स आते हैं या इवन लोकल्स हमारे कश्मीर से भी आते हैं गेस्ट्स, तो एक तो यहाँ हमारे जो प्रोग्राम्स हैं या एक्सपीरियंसेस है, फॉर एग्जांपल वी पीपल कैन डू फार्मिंग, पीपल कैन डू पॉटरी, पीपल कैन अंडरटेक क्राफ्ट. हमारा एक स्टेशन है पूरा, so आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सब जगह हैं कि when people can come and experience, people can come and undertake those experiences. So all of these experiences are, and the whole setting, जिस तरह का हमने ये spaces बनाए हैं, people can just sit and relax. इसको हम इकोथेरेपी का जो आइडिया है, वो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है कई लेवल्स पे. So people can just sit, listen to the bird song, reconnect with the nature's frequency. तो इस तरह से we help people just de-stress and relax and reconnect with nature. तो जैसे इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो obviously it helps them, you know, एक तो
डिस्ट्रेसिंग तो होती है, बट ऑल्सो इट हैज एन हीलिंग इम्पैक्ट ऑन अस। एग्जैक्टली, नेचर इट हैज की अ पॉजिटिव काइंड ऑफ हाँ, एनर्जी। क्योंकि हम भी नेचर ही हैं, तो एग्जैक्टली, हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है दैट मैचेस नेचर्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, इतने भागदौड़ की जिंदगी में रहते हैं, तो पीपल लूज दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स व्हाट creates stress and creates a lot of problems, इंटरेस्टिंग, health इंटरेस्टिंग। problems. तो वो एक एक्सपीरियंस हम देते हैं कि how can you reconnect with nature and bring yourself back to that frequency and think clearly. तो उसके अलावा हम यहाँ ऊपर इन पहाड़ियों के पीछे काफी अच्छे मेडोज हैं। एक ऑरल स्टीन करके एक हमारे एक्सप्लोरर भी हुआ करते थे जिन्होंने राज तरंगनी को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ओके, ही वाज एन हंगेरियन एक्सप्लोरर। तो वो यहाँ मोहंद मर्ग है ऊपर उस पहाड़ के पीछे, उस मेडो में ही यूज्ड टू कैंप इन द समर्स। तो वी आल्सो एक्सप्लोर दीज शेफर्ड ट्रेल्स एंड टेक पीपल अप दीज माउंटेन्स ऑन तो आप ट्रैक्स। वहाँ पे जाते हैं? हाँ, वहाँ पे हम जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। काफी खूबसूरत चीजें हैं, मगर द होल आइडिया इज टू हेल्प पीपल गेट आउट ऑफ द chaos, reconnect with nature and thereby feel rejuvenated. तो उसके बाद if people want to go deeper, we also have programs where we help people reflect on their life, and if they want to sort of adapt a lifestyle or change something about their life, whether it is their career or whether uh, it is anything else. So we also help with that. So we have that's what I capacity building and training that's what programs I as also well. felt कि जब Yeah, मैं यहाँ आया, so it's about it's a lifestyle, I think, बिल्कुल। कि इसमें बहुत सारी चीजें, आपने हाँ फूड की बात की, you said farming, you said activities, whatever you have done, it's done by you and your team here. तो जी मुझे लगता है एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है। सो उस पे हम आते हैं कि सो हाउ चैलेंजिंग इट इज टू काइंड ऑफ बिल्ड समथिंग लाइक दिस इन टुडेज डे एंड एज। लाइक आज हम एक डिजिटल एज में रहते हैं, जी एंड यहाँ पे वी आर डूइंग दिस डिजिटल डिटॉक्स, और हम उसको कट कर रहे हैं बाकी दुनिया से। जी सो एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइक देयर विल बी सम टाइम जो उसको लगेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन में होने में। तो वो कितना चैलेंजिंग है, मतलब एक बंदा आएगा, मे बी 2-3 days he will enjoy, he will stay here, but how does he adopt this? Because I come here, I feel something here, मैं घर जाऊंगा, मैं वापस उसी एनवायरनमेंट में वापस जाऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ चैलेंजिंग इज दैट? जी बिल्कुल, चैलेंजेस पे मैं आता हूँ, मगर मैं जो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये रिजनरेटिव लाइफस्टाइल है। दैट्स एक्चुअली आवर मिशन, टू बिल्ड अ रिजनरेटिव लाइफस्टाइल। तो रिजनरेटिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि क्योंकि इंसान या पूरा नेचर जो फंक्शन करता है, ये एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन नेचर एनीवे। एक नेचुरल प्रोसेस ही ऐसा होता है, तो इंसान भी नेचर ही है, तो वी आर ऑल्सो सपोज टू बी वॉकिंग दैट पाथ इफ वी स्टे ट्रू टू आवर नेचर। क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं वो सब चीजें, मगर वी आर एसेंशियली रिजनरेटिव कैरेक्टर्स। तो वो चीज जब हम कहते हैं अपने नेचर से रिकनेक्ट करना, दैट्स व्हाट वी वांट टू रिकनेक्ट टू आवर, टू शिफ्ट आवर अंडरस्टैंडिंग बैक to our natural understanding of who we are. We are meant to take forward the evolution, क्योंकि हम इंसान is at the top of the chart, नेचर के चार्ट में सबसे ऊपर है। तो we have that capacity to imagine things, to we can use other resources, we can create our own environment. तो वो कैपेसिटी हम में है। तो दैट इज आवर मिशन इज टू बिल्ड रिजनरेटिव लाइफस्टाइल। तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा टूल है, और अब अभी जो रैपिड ट्रांजिशंस हो रहे हैं, रैपिड एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, अभी एआई और उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, अभी काफी सारी चीजें, रोज नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। और ये आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, जो नई नई चीजें आ रही, सो इज डू यू सी दैट एज योर फ्रेंड और डू यू सी दैट एज योर एनिमी, व्हाटएवर एडवांसेस आर कमिंग? लाइक आज एआई का दौर है, इससे पहले कुछ दौर है, अब नेक्स्ट कुछ आएगा। आई वुड से हाउ डू यू इंटीग्रेट दैट? the original potential is for them to be our friends, magar it depends on how we use them and how we
if we let them control our minds, then we're gone. Like मैं आपको बोलता हूँ 1 साल पहले जो हम जिस चीज पे टाइम स्पेंड करते थे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखना है, कुछ ब्लॉग लिखना है, you'd spend time, you'd think बिल्कुल on बिल्कुल dozens of things, बिल्कुल dozens of बिल्कुल ideas. बिल्कुल वो करते थे आप। आज you need just 1 minute, बिल्कुल you just need one line and हाँ it's ready. बिल्कुल So वो सोचने का टाइम भी अब चला गया, हाँ ठीक है? अब आगे क्या होगा कैसे होगा तो we don't know. वहां भी मैं कहूंगा अगर यू हैव टू मेक द डिस्टिंक्शन, बिकॉज जो रेपिटेटिव टास्क हैं, फॉर एग्जांपल हाँ राइटिंग अ ब्लॉग यू कैन यूज द हेल्प ऑफ एआई, मगर ओरिजिनल आइडिया आपका होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू से, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म The original कि thought. व्हाट इज द राइट थिंग टू से, एंड देन यू कैन यूज एआई टू रिफाइन इट, यू नो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, उसमें कुछ एडिशन करना होगा, उसमें कुछ हैशटैग ऐड करना होगा, वो अपने आप कर देगा, है ना, या आपको अच्छी हेडलाइन बना के देगा, मगर ओरिजिनल आइडिया हैज टू बी योर्स, नंबर वन, यू डोंट गिव अप ऑन योर ओरिजिनलिटी, नंबर टू, और कुछ चीजें हैं जो आप एआई की हेल्प लेंगे, इजीली ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, मगर देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नो जो वैल्यू बेस्ड हैं, जो वैल्यूज के अराउंड हैं, जहां आपको यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस, डोंट आस्क एआई कि यू नो आप रिलेशनशिप्स में क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह का क्या कर, क्योंकि जो आपका जो बनावट है, जो नेचर ने आप में जो कंपस डाला है मोरालिटी का, वैल्यूज का, जो आपकी इंक्लिनेशन है, तो वो एआई नहीं कर सकता है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि आप कौन सा काम इससे करा सकते हो। यू आर सेइंग कि उसको वो एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आप, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, हाँ, और मेक इट बेटर। हाँ, ओरिजिनल आइडिया आपका ही होना चाहिए और आपका ही कंट्रोल होना चाहिए, वैल्यूज मॉरल्स कैसे होनी चाहिए, किस तरह की वो उसका आउटलुक क्या होना चाहिए, वो आप डिसाइड करें। तो टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली यू शुड यूज, और इसमें और एडवांसमेंट्स आएंगी, क्योंकि यू नो ये एक अगेन इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान ही पैदा कर रहा है ये टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली, है ना, तो वो भी एक हमारी ही जुस्तजू है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज टूल्स आर यूजफुल और करने चाहिए, मगर काफी सारा हमने क्या किया है अभी तक, जो इससे पहले भी जैसे गाड़ी आई है या बाकी चीजें आए हैं और भी टूल्स आए हैं, वी हैव गिवन अप, हमने कुछ कोर चीजें अपनी छोड़ दी हैं, so that's why we are seeing health crises, mental health crises, हमारे unemployment crises, because हमने कुछ basic elements में compromise किया है, because technology ने हमको वो क्या कहते हैं ना उसको hypnotize कर दिया है। exactly. वो जो हमारे सामने तमाशे हो रहे हैं, तो हम तमाशों से इतने मुतासिर हो गए हैं, एक डोपामाइन रश काइंड ऑफ हाँ हमें मिलता है, और बिल्कुल बिल्कुल we crave that, हाँ, हम तमाशों से इतना मुतासिर हो गए हैं कि हमने अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी है उस, एंड वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट। जो डिस्कनेक्शन हुआ है हमारा अपने आप से, उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, मगर उसके वजूहात ये भी हैं क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल सेंसरी जो इनपुट मिलता है टेक्नोलॉजी के हवाले से या बाकी चीजों से, तो वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और वो डिस्कनेक्शन आप यहाँ आएंगे, जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि आप 2-3 दिन रहेंगे, हफ्ता रहेंगे, 10 दिन भी रहेंगे, तो उस टाइम के लिए तो ठीक है, मगर देन यू विल गो बैक एंड आपको प्रेशर्स आएंगे, आपको वापस जाना है उसी एनवायरनमेंट में, तो वो जो शिफ्ट है हर एक इंसान की लाइफ में, जो शिफ्ट आता है ना, वो धीरे धीरे आता है, स्टेजेस में आता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूंगा, आई स्पेंट 20 years outside traveling, seeing other people, witnessing other initiatives, learning, and also you know climbing the job ladder, earning more money, going here and there, and जो भी करना था वो इधर उधर जो शौक होते हैं वो भी पूरे किए, तो it also took a while, 20-25 साल मुझे खुद ही लगे उस ट्रांजिशन में वापस to reconnect with my roots, for example farming, you know I left farming, मगर 20-25 साल में मुझे इतनी वो मेंटल कैपेसिटी मेरी और अपनी पर्सनल कैपेसिटी डेवलप हुई, सो आई कुड कम बैक एंड रिकनेक्ट। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, डोंट टेक प्रेशर कि आपको एब्रैक्टली करना है, बट डोंट ऑल्सो यू नो फॉर एग्जाम्पल हम एंड गोल सोच के, हम ट्रांजिशन को सोच के पहला स्टेप भी नहीं लेते हैं, करेक्ट है ना। आप जाओ तो 3 दिन रहो, हफ्ता रहो, इस प्रोसेस को शुरू करो, तो धीरे धीरे यू विल सी, यू विल स्टार्ट लर्निंग, यू विल गेन कॉन्फिडेंस, यू विल मीट अदर पीपल। हो सकता है एट वन पॉइंट मे बी 5 साल में, 10 साल में, व्हेनेवर दैट मोमेंट इज राइट, यू मेक द ट्रांजिशन।
Right. तो मगर it is possible to build a regenerative lifestyle. I think it's pretty simple. अगर हम थोड़ा सा ये जो फसाड है, ये जो हमारा हमने एक आर्टिफिशियल रियलिटी सी अपने अराउंड क्रिएट की है और प्रेशर्स क्रिएट किए हैं, उसको अगर हम थोड़ा न्यूट्रलाइज करें और थोड़ा सा अगेन वही तो डी नहीं, स्ट्रेस करेंगे, वही तो रिलैक्स नहीं करें. करना चाहते ना हम. यू सेड इट्स सिंपल, सिंपल ही नहीं चाहते. मुझे लगता है हम सिंपल चीजें चाहते ही नहीं. We want to, I don't know, consciously or subconsciously do complicated thing, get into those societal pressures या कुछ, and वो हाँ वो करना है क्योंकि यही करना है. लोग मैं इस पे एक बात और ऐड करूंगा, वी आर आल्सो नॉट मेंट टू डू सिंपल थिंग्स. हमारी जो कैपेसिटी है, वी आर मेंट टू टेक ऑन कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस. तो मैं इसमें ऐड करूंगा फॉर द बेनिफिट ऑफ यंगर पीपल कि चूज अ गोल दैट इज वर्दी ऑफ योर अटेंशन. तो आप कॉम्प्लिकेट करो चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजें करो, बड़ी चीजें करो, मगर चूज समथिंग दैट यू विल बी प्राउड ऑफ आफ्टर अ व्हाइल. थोड़ा सा लंबा सोचो. ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने से कोई फायदा नहीं है. यू विल यू नो वी आर वेस्टिंग आवर अपॉर्चुनिटी. एग्जैक्टली. तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के कोई ऐसा वर्दी गोल पकड़ो जो बड़ा भी हो, जिसमें आपको चैलेंज भी मिले, जिसमें आपको खुशी भी मिले, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी हो, जो आपकी जरूरत के हिसाब से भी हो, जिसमें आप अपने, जैसे मैं कह रहा था, हमने इसमें ये जो इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है, वी हैव इंटीग्रेटेड, फॉर एग्जांपल आई हैव इंटीग्रेटेड माय पर्सनल एस्पिरेशंस, ड्रीम्स. हाँ, और फिर मेरे सोशल गोल्स क्या हैं, मेरे रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, तो मैं वो इंटीग्रेट कर पाया हूँ. तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मगर इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल बिकॉज आई लाइक इट. मुझे मजा आता है. तो इसमें, और लोग कहते हैं फेलियर है, चैलेंजेस हैं. भाई चैलेंजेस तो हैं ही, बट वी आर मेंट टू टेक ऑन चैलेंजेस. जो हमारी कैपेसिटी है उसी में मजा आता है. दैट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. बहुत स्ट्रेट लाइन होगी तो कोई मजा नहीं है उसमें. तो एक तो वो, दूसरा आई थिंक काफी फुलफिलिंग जर्नी है. हाँ, काफी फुलफिलिंग जर्नी है. और जो लोग यहाँ आते हैं, जब वो कनेक्ट करते हैं, अभी जो मैं कह रहा था, रिसेंटली जो गेस्ट आए, वो इतने उन्होंने एंजॉय किया, मुझे इतना मजा आया. ऑब्वियसली वो काफी सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है हमको पहले से भी, तो उसके लिए आई मीन आई एम रियली थैंकफुल. वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है. मोटिवेटिंग नॉट एज मच, बट सेटिस्फैक्शन मिलता है. अच्छा लगता है जब किसी और को आपका काम अच्छा लगता है. तो इट इज पॉसिबल. वही आई थिंक मेरा नेक्स्ट वही आपसे क्वेश्चन था. दो चीजें थी बल्कि, एक जो आपने अभी टच किया कि यू गेट दैट सेटिस्फैक्शन एंड ऑल. सो यू स्टार्टेड 2019, मतलब तब से 16 साल हो गए. तो नाउ यू लुक एट whatever you have created. तो how do you feel now? मतलब any random day आप उठते हो सुबह and you hear the birds और आप देखते हो कि जो मैं कोशिश करना चाह रहा था या कर रहा था, it's not 100% but it's like एक जर्नी है जो मैं चल रहा हूँ. How do you feel right now? ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आता है, और वो दिन ब दिन इंक्रीज ही होता जा रहा है. क्योंकि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये जो हनी बीज थी कर, जब शुरू में हम यहाँ आते थे, यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे नहीं थे. जैसे मैंने बोला, कुछ कांटे वांटे थे और कुछ पुराने पेड़ थे. ये 2-4 पेड़ थे, ये वाले जो एप्रिकॉट ट्रीज हैं बड़े बड़े. अदरवाइज कुछ और नहीं था. तो अब जब मैं देखता हूँ यहाँ कई बार ऐसी बर्ड्स दिखती हैं जो साल में किसी एक पर्टिकुलर, हाँ, इस टाइम में जब बारिशें होती है ना, उस टाइम पे यहाँ एक बहुत रंग बिरंगी, रेड, येलो, उनकी 2-3 कलर्स हैं. सेम बर्ड है मगर 2-3 कलर्स में वो मिलते हैं. वो इसी टाइम पे दिखते हैं. तो इस तरह का जब आपको यूनिक चीज देखते हैं ना, तो बहुत मजा आता है. दूसरा जो मेरे लिए बहुत बड़ा, जो पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, जो दूसरे लोग आते हैं, जब उनको वो कनेक्ट करते हैं, जब वो उनको अच्छा लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है. एक वैलिडेशन यू गेट फ्रॉम अदर पीपल कि नहीं, चलो व्हाट जो भी मैंने बनाया इट इज वैल्यूएबल. हाँ, पीपल आर रिकनेक्टिंग, मोर एंड मोर पीपल आर कनेक्टिंग विद इट. और काफी सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, इवन कश्मीर से लास्ट ईयर वी हैड अ फ्यू ग्रुप्स who wanted to do something like this, who had returned from outside of Kashmir, who had lived in Gulf. 3 families थी, वो गल्फ में रहते थे, वो वापस आए थे. they were
they stayed with us for a few days and they were exploring कि वो इस तरह का एक lifestyle, वो home schooling उन्होंने शुरू की है and they want to adapt this kind of a lifestyle. तो उसी पे मैं आना deeper level के जो people who have already started their journeys of transition, Amazing. they are also connecting and they are also we are also working together in some ways. So वहीं पे मैं आना चाह रहा था. What is now the impact जो आपने अभी तक देखा है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि और लोग इसमें इंटरेस्टेड है, आना चाह रहे हैं. So how has this been received now? How are you being received? How is the idea being received? क्या impact आपको लगा है कि create कर पाए हैं? Well, thankfully एक तो ये जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इसकी, ये जो फिजिकल जगह बनाने में जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, या लोकल लोगों के लिए थोड़ा बहुत एक इकोनॉमिक इसका सोर्स भी है, क्योंकि हम एक तो यहाँ टीम लोकल है, सारा काम लोकल्स ने किया है अभी तक भी, और फुल टाइम जो टीम रन करती है वो भी लोकल है, और प्लस कुछ चीज़ें हम लोकल से सोर्स भी करते हैं विलेज से. तो एक तो वो कंट्रीब्यूशन है. दूसरा इसका जो एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैं कह रहा था, वो बर्ड्स या इंसेक्ट्स जो रिटर्न वापस आए हैं, जो अब दिख रहे हैं हमको यहाँ उस तरह का, और हमने ये जो नेचुरल फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं ही हैं. मगर उसके अलावा हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी सारे एलिमेंट्स, वो एक पूरा मॉडल तो एज सच नहीं कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डीप जाना पड़ेगा उसके लिए. ये मॉडल मुझे लगता है इकोसिस्टम है. हाँ, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है. तो इट नीड्स दैट शिफ्ट. तो मगर लोग थोड़े थोड़े कुछ चीजें अडेप्ट करना शुरू कर दिए. फॉर एग्जांपल, हम ये वगू जो है, लोग हमसे वगू खरीद रहे हैं, तो वो अपने रेस्टोरेंट्स में या अपने घर में यूज कर रहे हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स एक तो हो रहे हैं. मड हट्स लोगों ने बनाए हैं कहीं और, मतलब इको विलेज नहीं बनाया है, मगर मड हट्स बनाए हैं. कुछ चीज लोगों के साथ, क्योंकि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेनीज हमारे इस तरह का सोच रहे हैं. एक वुलर इको हब करके एक बच्ची है, वो प्लान उसने शुरू किया है. एक बंगस में एक लड़का है जो हमारे साथ थोड़ा काम कर रहा है, जो एक इस तरह का कुछ वहां शुरू करना चाहता है. तो एक तो इसका जो अपना फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जो प्रोसेस में इम्पैक्ट रहा है लोग इस एरिया में. दूसरा, वी हैव आल्सो बीन एबल टू इंस्पायर अदर पीपल टू कॉपी और टेक ऑन सम एलिमेंट्स. पूरा मॉडल नहीं तो कम से कम कुछ कोई एलिमेंट कॉपी हो रहा है. दूसरा, कुछ यंग लोगों के जहन में देयर इज द सीड कि वुलर इको हब या बंगस इको विलेज स्विच ऑन हो रहा है. हाँ, स्विच ऑन हो रहा है. लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, वो कॉन्शियसनेस में आ रहा है. उसके अलावा जो है, जैसे चाहे वो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे हो, या ये जो मैक्रो लेवल पे पूरे कश्मीर में, या इवन कश्मीर के बाहर भी, वी हैव बीन एबल टू स्टिल द इमेजिनेशन सॉर्ट ऑफ, एंड आल्सो expand the conversation about, for example, sustainable development, regenerative travel, responsible tourism. उसमें भी थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है. उसमें recently also recognized by Outlook Travel. हाँ, उनका एक अवार्ड्स होता है नेशनल लेवल का कुछ, उसमें हमको रिकॉग्नाइज किया गया. Amazing. आपको भी किया गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी. बिकॉज ये जो भी आपने बोला सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर की वैल्यूज जिस पे हम ग्रो करना चाह रहे हैं. तो एंड नाउ I'd like to come to one important part. अब ये तो हमने सब कर लिया, बट द थिंग इज कि हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ, एंड कैसे आप, क्योंकि इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, सो यू हैव टू मेक मनी आल्सो. तो हाउ आर यू एबल टू डू दैट? आपका मॉडल कैसा चलता है? जी, हमारा बेसिक मॉडल जो एज ऑफ नाउ है, क्योंकि हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये पूरा इसको मैं बोलता ही हूँ है ना, एक्सपेरिमेंट इन इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इसका कोई एज सच कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था. तो हमने जो भी खुद समझ में आया कि किस तरह से करना चाहिए, वो सब किया. तो अभी हमारे बेसिकली 3 वर्टिकल्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं. प्राइमरी और जो पहला है वो है रिक्रिएशन का. सो वी ऑफर दीज रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस, ऑफबीट रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस, या वेयर वी हेल्प पीपल विद दीज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, और फिर हेल्प देम रिकनेक्ट विद नेचर, और थोड़ा डी स्ट्रेस करने में हेल्प करते हैं, हीलिंग में हेल्प करते हैं. तो इस तरह का एक हम एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें हम रिट्रीट्स भी करते हैं. वी ऑफर ग्रुप रिट्रीट्स, और हम इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए भी ऐसे हमने कुछ पैकेजेस बना रखे हैं जहां वो इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ. तो एक तो ये है. दूसरा, वी हैव दिस फार्म टू टेबल ट्रेडिशनल कुजीन जो हम ऑफर करते हैं, जो हम सर्व करते हैं. तो
अगेन ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। So जैसे this farm to table, this is like a cafe. हाँ कैफे है हमारा, जहाँ हम अगेन हम ट्रेडिशनल कश्मीरी खाना खिलाते हैं, वाजवान से अलग जो दूसरा ट्रेडिशनल कश्मीरी अपना होता है। Completely organic, आपका हाँ इन हाउस जी ग्रोन जो जी, इन हाउस ग्रोन है। कुछ हम सोर्स बाहर से भी करना पड़ता है, मगर मोस्टली इन हाउस ग्रोन है। है। और वो एक बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, लोकल्स भी काफ़ी एंजॉय करते हैं उसको। और अक्सर जो लोग यहाँ आते हैं उनको अपनी दादी माँ, नानी इस तरह के ख्यालात आने लगते हैं, उनको वो याद करते हैं, उनको वो उनको ग्रेटिट्यूड भेजते हैं। तो दूसरा एक हो गया ये रिक्रिएशन। इसके अलावा रिक्रिएशन में ही हम लोग वी आर रीचिंग आउट टू कॉर्पोरेट्स, टू इंस्टीट्यूशंस, टू ब्यूरोक्रेसीज, कि वो अपनी टीम रिट्रीट्स यहाँ करें। तो वो भी हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ रिट्रीट्स की बिजनेसेस के साथ। तो वो एक बहुत अच्छा, बिकॉज ये एक सेटिंग ऐसी है ना जहाँ एंटर करते ही एक तो आप नेचर और कल्चर का जो असर आप पे होता है ना, इट ऑल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और वो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना वो नेचुरली होने लगती है। लोग खुद ही नए आइडियाज देने लगते हैं, उनको पूछना नहीं पड़ता। और काफी सारे लोग हमको भी, हमारे साथ भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। तो उन रिट्रीट्स के लिए, कॉर्पोरेट रिट्रीट्स, टीम रिट्रीट्स, इस तरह की जो सेटिंग्स है जहाँ लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं या टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए। उसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के लिए रिट्रीट्स करते हैं, यूथ के लिए रिट्रीट्स करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स। काफी सारे लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, तो दे ब्रिंग दिस ग्रुप्स हियर। तो ये तो हो गया रिक्रिएशनल और थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग का एलिमेंट। दूसरा जो है हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स है, जो मैं बोल रहा था कि हम कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज यूज करके वी प्रिजर्व, वी मेक पिकल्स, जैम्स, और कुछ हैंडक्राफ्ट्स के साथ भी हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो वो एक दूसरा स्ट्रीम ऑफ इनकम है। पहला तो हम सब बड़ा तो रिक्रिएशन ही हमारा अभी, मगर हमने जो प्रोडक्ट्स ओवर द इयर्स टेस्ट किए हैं वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। वी आर लुकिंग फॉर रिसोर्स टू स्केल दैट अप। तो प्रोडक्ट्स का जो काम है हमारा, दैट इज वेरी काइंड ऑफ आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में भी है, बिकॉज पीपल नाउ वांट टू गो बैक टू द ऑर्गेनिक्स एंड प्रिजर्वेशन वगैरह को हटा देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अ वेरी, हाँ वो बहुत, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं वो बहुत एनकरेज करते हैं, तो उसको हमको स्केल अप करना है। तो तीसरा जो हमारा है वो है एजुकेशन का, जो हमारा मिशन था टू वर्क विद यंगर पीपल। तो ये जो सारा लर्निंग है इस एक्सपेरिमेंट से, वी आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग दैट। इसमें I had to personally also go through a lot of transition myself. मैं social work bent of mind का था, तो social worker और entrepreneur काफी different mindsets हैं। Exactly. तो मुझे वो integrate करने पड़े, मुझे अपने ऊपर काफी काम करना पड़ा। I had to learn a lot about business, about entrepreneurship, about marketing, about expressing myself. तो वो सारी काफी सारी चीजें we have documented all of those and we have created coaching programs जहाँ हम ये ecological entrepreneurship पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली कैसे आप कर सकते हैं वो। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है, जो माइंडसेट वाला एलिमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट डू यू नीड टू इनकलकेट टू बी एबल टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। तो उसके ऊपर भी हमारे बहुत प्रैक्टिकल कोचिंग प्रोग्राम्स है जो हम ऑफर करते हैं। तो वो तीसरा हमारा एस्पेक्ट है। तो ये तीनों चीजें मिला करके हम हमारा बिजनेस मॉडल बनता है। वो भी एक, अब ये कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये तो अलग अलग चीजें हैं, मगर ये अलग अलग चीजें नहीं है, क्योंकि ये सारी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इस तरह का रिजेनरेटिव लाइफस्टाइल आप बढ़ाना चाहते हैं तो यू, और एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस, मगर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यंगर पीपल, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग, इफ यू वांट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, आप लाइफ का हर एक जो ऑफरिंग है उसका मजा लेना चाहते हो, हर एक का नहीं शायद बट मोस्ट, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे टू गो। बिकॉज ये आपको चैलेंज करती है। आप, आई मीन फॉर एग्जांपल, आप जॉब करेंगे तो आप, हो सकता है यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ इन वन थिंग एंड दैट विल डू, मगर एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हैं तो यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। ये आपके हर एरिया को चैलेंज करेगी। आपको इमोशनली भी यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, ऑब्वियसली मेंटली आपको करना ही है, यू हैव टू एंगेज, और आपको बोलना भी है, यू हैव टू मार्केट, है ना, आपको टीम भी मैनेज करनी है, यू हैव टू बी अ टीम बिल्डर। तो ये अलग अलग तरह की डिफरेंट कैपेसिटीज है जो आप, एंटरप्रेन्योरशिप आपको चैलेंज करती है कि टू बिल्ड
to use all these muscles. Exactly. तो मुझे लगता है काफी fulfilling Fulfilling experience journey रहता है। है। हाँ नाइस, ठीक है। जी सो अमेजिंग, आई थिंक बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हैं एंड देयर इज अ डीप फिलॉसफी एज वेल जी जिस पे हम घंटों बात भी कर कर सकते सकते हैं, हैं बिल्कुल। बट या एज अ पॉसिटिव ऑफ टाइम विल हैव टू एंड इट हियर। तो उससे पहले लाइक what are the big, I think, next big goals जो you want to achieve in the maybe 2 to 3 years now, जो आपको लगता है कि this is what I want to do now? जी थैंकफुली जैसा रेस्पॉन्स है, आई मीन इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो अभी हमारा है कि वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ और फैसिलिटीज हम बिल्ड करना चाहते हैं एंड वी आल्सो वांट टू ऐड सम मोर एलिमेंट्स टू आवर ऑफरिंग्स। हम और डीपर ले जाना चाहते हैं लोगों को। तो पहला काम तो हमारा वो है, वी आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज फॉर दैट। नंबर 2, अब सागीको विलेज एज अ मॉडल इज वर्किंग। तो जैसे मैं बोल रहा था और लोग थोड़ा उनके जहन में भी वो बीज बोए जा रहे हैं, तो वी वांट टू रेप्लिकेट दिस मॉडल इन अदर प्लेसेस, वी वांट टू वर्क विद अदर पीपल। तो ऑब्वियसली जो बेसिक फ्रेम है दैट कैन बी रेप्लिकेटेड, इट हैज टू बी अडेप्टेड टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट। वहाँ क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उस जो भी बंदा कर रहा है उसका अपना क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या वैल्यूज हैं, तो उस लिहाज से अडेप्ट करना पड़ेगा, मगर बेसिक फ्रेम इज रेप्लिकेबल। और इस तरह का तो वो एक दूसरा लेवल का है कि वी वांट टू टेक दिस टू अदर प्लेसेस एज वेल एंड टू अदर पीपल। और जो हमारा पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो एंगेजमेंट है, चाहे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिजनरेटिव लाइफस्टाइल के हवाले से, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो उन फोरम्स में लोकली एज वेल एज ग्लोबली कंट्रीब्यूट करने का हमारा चल रहा है प्रोसेस और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। जी जी जी। सो लाइक फाइनली अगर मेरे को ये एक्सपीरियंस करना है, हाउ डू आई डू इट? अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो सिंपली यू हैव टू गेट इन टच एंड गिव अस अ you know, So you have a website, we have a website sagikovillage.earth जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है एंड ऑल्सो वी आर ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल्स जो पॉपुलर हैं। और वहाँ से सिंपल एक क्लिक से आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। यू कैन सेंड अस कि आप की रिक्वायरमेंट क्या है एंड विल हेल्प यू प्लान योर रिट्रीट। और जो हम जो करना चाहते हैं, जो हम इससे पहले जस्ट बात कर रहे थे अभी कि नेक्स्ट प्लान्स क्या है, एक तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कहा और सब को आगे कैसे ले जाना है, मगर जो हमारा कोर है दैट इज टू रीच मोर एंड मोर पीपल, हेल्प मोर एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस दिस। और अभी जो इंटरेस्ट बन रहा है और वी आर फीलिंग लाइक कि काफी सारे लोग आर लुकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ places and experiences, and we are glad to be able to reaching out to more people. So we want to serve more people, we want to help more people to reconnect with nature and de-stress and heal and live happy fulfilling lives. Amazing. Yeah. So one last thing also कि अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है, you can also come to Wildflock. Will also connect you with Sagiko Village as well. बिल्कुल। So Faisal, thanks a lot for Great your time. pleasure. As always, pleasure talking to Great you. pleasure. Until next Thank time. you. All the best. Love it.